Hello everyone, welcome back you all in my online classes. Dear students, I am here with class 7th mathematics. Dear students, we are doing chapter 2nd fractions and decimals and exercise 2.1. Okay, we have already done first 3 questions of this exercise in our previous one lecture, right? So today we will proceed it further with question number 5. Dear students, question number 4 you can do by yourself with the help of question number 5, right? So we will solve here fifth question. Fifth question is given, find the perimeter of triangle ABE and rectangle BCDE in this figure. We have given a figure, it is also given in your book. Okay, from this figure we have to find the perimeter of triangle and perimeter of rectangle, and we have to say whose perimeter is greater. Okay, so first of all we will find the perimeter of triangle, and then we will find the perimeter of rectangle, and then we will compare whose perimeter is greater. Okay, so let us start. First part. First of all, we know that perimeter of triangle is the sum of all 3 sides. Okay, so first of all we will write here the sides of this triangle ABE. So in triangle ABE, sides AB is equal to, साइड AB हमारे पास कितना दिया है 5/2 सेंटीमीटर. ओके, साइड AE इक्वल टू 3/5 सेंटीमीटर. 3/5 सेंटीमीटर. डियर स्टूडेंट्स, ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में. 5 3 जा 15, 15 plus 3 18/5. 18/5 centimeter is our AE. Okay, this is side AB, and what is third side BE? Side BE is equal to 2 3/4. 2 3/4 centimeter. We can also convert this in improper fraction. 2 4 ja 8 plus 3 11/4 centimeter. So this is the third side of triangle ABE. Now we have to find the perimeter of triangle ABE. So now perimeter of triangle ABE is equal to sum of these sides AB plus AE plus BE. Okay, AB plus AE plus BE, sum of all 3 sides is equal to, now what is AB? It is 5/2. 5/2 plus what is AE? It is 18/5. 18/5 plus what is BE? It is 11/4. 11/4. Dear students, all 3 fractions are unlike fraction, so we have to find the sum of fractions. We will take LCM of denominators 2 5 and 4. So first of all LCM हम यहाँ भी ले सकते हैं इसका 2 5 4 अपने, इसका LCM आ गया 2 1 2 5 2 5 1 5. Okay, so 2 2 ja 4 5 ja 20. So since LCM of 2 5 and 4 is equal to 20. Okay, हमने LCM लिया, तो जो LCM लेंगे it will be as common denominator here. Okay, then we will divide LCM by the denominator of first fraction, which is 2,
20 divided by 2 we will get 10. We will multiply 10 with 5. So 10 5 10 into 5 we can write 10 into 5. Plus similarly here 20 divided by 5 we will get 4. 18 into 4 plus 20 divided by 4 we will get 5. 11 into 5 like this. Okay. We can write it as here equal to 10 5 ja 50 plus 18 4 ja 72 plus 11 5 ja 55 divided by 20, and it is further equal to 2 plus 5 7, 5 plus 7 12 plus 5 17, 177 upon 20. Okay, so this is the area of triangle. This is the area of perimeter of triangle ABC. perimeter है तो हमारे पास सेंटीमीटर में आएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड केस, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो हमारे पास बीई जो साइड है वो सीडी के इक्वल है. तो हमारे पास साइड बीई कितना था हमारे पास 2 3/4 सेंटीमीटर. रेक्टेंगल में क्या क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है हमारे पास. तो ये आ गया 2 3/4 सेंटीमीटर. 4 2 जा 8, 3 जा 11/4 आ गया हमारे पास ये. और जो हमारे पास ब्रेथ है इसकी इट इज 7/6. बी सी इक्वल टू डी. हम ले सकते हैं यहाँ से बी सी की लेंथ कितनी हो जाएगी 7/6 सेंटीमीटर. ओके, नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ. तो लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 2 बाहर आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे. लेंथ हमारे पास आ गई बीई इक्वल टू सी डी. ये लेंथ होगी रेक्टेंगल की और कितनी है ये 11/4. 11/4 प्लस ब्रेथ कितनी होगी बी सी इक्वल टू ए डी 7/6. तो हमारे पास आ गए, रेक्टेंगल का नाम दे सकते हैं यहाँ पर. रेक्टेंगल हमारे पास है बी सी डी ई. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई. 11/4 प्लस ब्रेथ कितनी आ गई 7/6. ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर सॉल्व कर देते हैं. तरीका वही रहेगा, एलसीएम लेंगे इसका. एलसीएम कितना आ जाएगा 24. 4 6 का एलसीएम 12 आएगा वैसे. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 3. यस, इसका एलसीएम आ गया 12. एलसीएम 12 आ गया हमारे पास. और L12 को अब डिवाइड करेंगे 4 से तो 3, 11 इंटू 3 आ गया यहाँ पर. प्लस 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा हमारे पास. 7 इंटू 2 और फर्दर हमारे पास हो गया 2 इंटू 11 3 जा 33 प्लस 7 2 जा 14 डिवाइड बाई 12. हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे. इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 4 7, 3 प्लस 1 4, 47 डिवाइड बाई 12. इस 2 से ये कैंसिल हो सकता है हमारे पास. 2 6 12 तो मेरे पास कितना आ गया 47/6 सेंटीमीटर. तो एक मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल जो मैंने निकाला वो कितना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई मेरे पास था 177/20 सेंटीमीटर. और एक मैंने निकाला एरिया ऑफ पेरीमीटर निकाला मैंने. दिस इज नॉट एरिया, पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई. और ये मेरे पास आ गया यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी. कितना निकाल दिया मैंने 47/6. मेरे पास 47/6 सेंटीमीटर. अब मुझे क्या करना है,
दोनों का पेरीमीटर निकाल दिया। मुझे कंपेयर करना है कि किसका पेरीमीटर ज़्यादा है, तो मैं पहले क्या करूँगा, इनको दोनों को पहले लाइक फ्रैक्शन में कंपेयर करूँगा, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा, उसके बाद मैं इसको इजीली कंपेयर कर सकता हूँ। ओके, तो कैसे हम कंपेयर करेंगे इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल विल कन्वर्ट इन लाइक फ्रैक्शन। सो वी विल टेक एलसीएम ऑफ 6 and 20, एलसीएम ऑफ 6 and 20, तो कितना आ जाएगा एलसीएम मेरे पास? एलसीएम मेरे पास आ गया 60। एलसीएम से कैलकुलेट करेंगे हम, तो मेरे पास 60 आ गया एलसीएम। 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, मेरे पास 60 इसका एलसीएम आ गया। और हमें क्या करूँगा यहाँ पर 47/6 को कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैसे करेंगे? 47/6 को यहाँ पे क्या करेंगे हम, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? 47 को हम डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 60 को 6 से डिवाइड करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ गया? 10/6, 10/10, तो यहाँ पर कितना आ गया? 470/60। सिमिलरली हम क्या करेंगे यहाँ पर 177/20 को भी कन्वर्ट करेंगे। 177/20 को कन्वर्ट करेंगे, कितना देगा? 177/20, इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 3 जा 21, कैरी ओवर 1, 21 + 1 22, कैरी ओवर 1, 3 + 1 4, 21/60। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सिंस 470/60 इज ग्रेटर देन 421/60, क्यों बड़ा है ये? बिकॉज 470 इज ग्रेटर देन 421। ओके, तो 470 इसका था हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल था। ओके, तो हम कहेंगे कि हेंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर। ओके, तो ये था हमारे पास 5th क्वेश्चन। Next question number 6th is Salil wants to put a picture in a frame. The picture is 7 3/5 centimeter wide. सलील एक पिक्चर को एक फ्रेम में रखना चाहता है। द पिक्चर इज 7 3/5 सेंटीमीटर वाइड। पिक्चर की जो विड्थ है वो कितनी है? 7 3/5 सेंटीमीटर। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 3/10 सेंटीमीटर। विड्थ ऑफ फ्रेम कितना दिया वहां पर? 7 3/10 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड? पिक्चर को कितना ट्रिम्ड किया जाए ताकि वो फ्रेम के अंदर फिट हो सके। तो हमें ये निकालना है। इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विड्थ ऑफ द पिक्चर। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा विड्थ ऑफ द पिक्चर इज 7 3/5 सेंटीमीटर। 7 3/5 सेंटीमीटर, इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 7 5 35 + 8 38/5 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट वन इज width of the frame. width of the frame कितना दिया मेरे पास? 7 3/10, 7 3/10 सेंटीमीटर। इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ जाएगा मेरे पास 73/10 सेंटीमीटर। ओके, सो द पिक्चर must be trimmed by the frame. यस, पिक्चर को हमें क्या करना है? ट्रिम करना है। द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड बाय हाउ मच? हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि पिक्चर बड़ी है और फ्रेम छोटी है हमारे पास, पिक्चर को हमें ट्रिम करना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे
38/5 में से माइनस कर देंगे 73/10 को। अब सिंपल सी बात है, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आएगा। 2 को 38 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 38 इंटू 2 माइनस यहाँ पर आ गया 73 इंटू 1। 10 को 10 से डिवाइड करने पर 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 73 आ जाएगा मेरे पास। नाउ 8 to the 16 कैरी ओवर 1, 3 to the 6 प्लस 1 76 माइनस 73/10। फाइनली मेरे पास कितना आ गया 3/10 सेंटीमीटर। तो इतना हमें पिक्चर को क्या करना पड़ेगा, ट्रिम करना पड़ेगा। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। Similarly, question number 7 and question number 8 you have to do by yourself, and if you have any doubt you can ask me on WhatsApp. That's all.